أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. So today I want to talk about the valvular heart diseases. This is the weak point of the most of the students. As a postgraduate or undergraduate both, they are in difficulty, definitely. For them, they said that it's difficult one. But it's not a difficult. The problem is this, that you have not been correctly guided how to read it and how to evaluate it. This is the problem. Problem is with us, not with the cardiology. Cardiology is very easy subject. There are four sessions actually because it's valvular heart disease is a very big chapter. So we will deal with the something about the valvular heart disease. If this presentation is visible to you, Sabah Asghar, Yes, sir, visible. you want to attend four sessions? There are four sessions of this valvular heart disease. Half hour each session. Do you able to attend it or not? This is my question. Okay, it's up to you. Scenario: a 21-year-old athlete presented in the medical OPD for the effort intolerance and palpitations for the last 1 month. He had given history of fever with joint pain when he was 12 years old. Now he's 21-year-old. It means that 9 years back, he remembered that he had developed fever with the joint pains. On examination, the temperature was 99, which is around normal. It's not much higher. Pulse is 87 per minute, normal, but it is irregular in character and rhythm. The blood pressure was 113 by 80, 130 by 80. A diastolic grade 2 murmur heard in the fifth intercostal space near to the nipple. Hemoglobin was 12.5 gram. Total leukocyte count 11,000. Normally it is 10,000 in Pakistan. 10,500 or 10,000, 11,000 means that still there is a higher count in Pakistan, not in England. It is normal value. Platelet is 345,000. Normal is 150 to 350,000. So it means that the acute phase reactant is not disturbed in this case. ECG is irregular rhythm with no P waves are seen. X-ray chest congestive changes seen. Only written as usual congestive changes are seen. What is the differential diagnosis? Always in four parts. How will you investigate and what are the possible investigation and how will you manage? Today I have sent you a management plan of the rheumatic fever. Have you seen Sabah Asghar, this management Yes, plan? sir. Yes, sir. Always follow this management plan. कोई आपको शिकस्त नहीं दे सकता. Okay, sir. हाँ, कोई भी चली जाए, आप पूरे वर्ल्ड में चली जाएंगी, इस प्रिस्क्रिप्शन को दिखाइए किसी को, तो वो आपको बताएगा कि जिस बंदे ने लिखा है ये, मतलब ये है कि उसमें टाइम लगा 20 मिनट्स. तो एक पेशेंट जो डील करने में जो टाइम लगेगा, इट विल टेक 1 hour for me is concerned. That is why I have actually rolled up my whole activities, clinical activities, because people are not following the basic principles of medicine. Most of the people, they are in a hurry because there are 40 or 50 patients rolling in their clinic. So I don't want to be the same person. I don't want.
So scenario is this. Okay, depending upon this scenario, there may be definitely a lot of differential diagnosis can be made. That's all right. Investigation always definitely it is a cardiac case. All investigation relating with the cardiology is there. Investigate and what are the possible investigations other than that, specific, non-specific, and how will you manage? The management plan is consists of 6 to 7 or 8 subgroups. Always. Now this is a BCQ for the final year actually, which one has the highest yield. Now, yield means the percentage in diagnosis of the valvular heart disease. Which one has the highest yield? Number A, electrocardiography. Number B, physical examination. C, echocardiography. And D, radiology. Echocardiography. That's echocardiography. Okay, so uh, I remember a case of SCP examination in which I argued with the examiner. Now he said that it is the patient has predominant AR. I said it was predominant aortic stenosis. So he said that he has a echocardiography with him. So I said to him, no sir, no sir. It is written in the first 7 or 8 pages of Harrison also in Davidson also. Physical examination has the highest yield. If you want to decide by the judge, first judge अगर लेके आएंगे तो वो ये बोलेगा कि Dr. Heather is correct because he has justified his findings on physical examination. Although he has got the dominant AR is all right and echocardiograph, but I justified him. The case of aortic stenosis justified. Justification is very very strong point. Justified. Shahada है इसमें. Always remember physical examination has got the superiority in the MRCP examinations, in the American examinations, steps 3, and also in Pakistan and India, etc. The physical examination has got a very important role in passing the candidates. Highest yield is always remember is physical examination. It decides between Oh, the two important parameters aortic stenosis, aortic regurgitation, or mitral stenosis, dominant or mitral stenosis, regurgitation, etc., tricuspid regurgitation, or other things. For example, VSD, for example, other things. Physical examination always superior. It means that cardiovascular physical examination should be known to everybody who is a practicing physician or a student or a postgraduate or a house officer or whatever. Physical examination should be done on the correct path. इसीलिए मैंने ये BCQ बनाया था. ये आप गलत कर देंगे लोग. ठीक है ना. जहाँ रोल एको का वहाँ पे है. यहाँ बोलते हैं वो valvular heart disease. इसमें तो there is no doubt about it. The physical examination you need it. वो it means that all of the candidates, students, postgraduates, etc., who will listen or who are watching my this message is this that the physical examination is superior to every examination. Investigation. ये आप हमेशा जिंदगी भर याद रखिएगा. ये बात इसको आपको आना चाहिए. फिर इसका मतलब you need to practice. Inspection is concerned, the palpation is concerned, and the auscultation. There are 3 subsets of examination in cardiovascular system is concerned. Precordial examination. There is peripheral vascular examination as well. Now, it's in the past I have never done complete examination
actually in front of the students because of the lack of time. The vast, you know, lecture to the time comes not. मेरे साथ problem ये I am a failure in managing the time. Time management मेरा बहुत poor है. And that is why my supervisor has said you are a very good speaker. The thing is this, that the time limitation is given to you. You are you are not following this. Poor time management. But ये मजबूरी है ये मेरी. अगर मुझे तो मार्क्स नहीं चाहिए, ना मुझे गोल्ड मेडल चाहिए, ना मुझे कुछ चाहिए, ना मुझे पैसे चाहिए. मुझे मेरे फर्क नहीं पड़ता. Now report this electrocardiogram. Now see, this is electrocardiography. There are very, very many findings are there. Look this lead, long lead rhythm strip. Here you see the irregular in rhythm wise is concerned, it is irregular, and there is hardly any P wave seen. In spite, some P spikes are seen. In spite, the F waves, the flutter waves are seen. It is a dominant rapid atrial fibrillation with a content of flutter also. लेकिन यहाँ पे तो फ्लूटर है, बिल्कुल क्लियर कट फ्लूटर है. मैंने तो आईसीजी किसी आपने कहा था ना जी, मतलब एक इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन होता है इन्वेस्टिगेटिव, मगर वो यहाँ आके जो है ना, अगर आपको पढ़ना नहीं आता है सही तरह तो आप नहीं बता सकते. इसमें और फाइंडिंग भी बहुत सारी हैं. On this electrocardiograph I can speak half an hour. I don't want to go. But ये कि the thing is this ECG is related with the scenario which I have given to you. It is rapid atrial fibrillation with a content of atrial flutter, and the patient has got a diastolic type of murmur which he perceived by the examiner on the left parasternal border near the nipple. So it is related with some problem there. Anyway, now remember about and repeat the chambers of the heart. There are four chambers in the heart: the right atrium, the right ventricle, the left atrium, the left ventricle. There are four valves: the mitral valve between the atria and the ventricle on this side, tricuspid valve on the right side, separating the right atrium from the right ventricle, pulmonary valve, pulmonary trunk to the right ventricle, and aortic valve, ascending aorta and the left ventricle. Simple as that. What is the cardiac cycle then? All blood which is collected by the superior vena cava and the inferior vena cava, it comes now into the right atrium, and then in the right ventricle it is deoxygenated blood goes, goes to the lungs through the pulmonary artery, distributed there, and oxygenation occurs, and it will come back through the pulmonary veins, which are four in number usually. It may be five, it may be six. They emptied into the left atrium. They empty into the left atrium. Luckily, is there another person. So, cardiac cycle should be repeated. लेकिन आप जितना आप रिपीट आप लोग करेंगे तो फिर आपकी समझ में आएगी बात. ऐसे नहीं आएगी. Cycle, then emptied into the oxygen into the left atrium, then the metal valve crossing it, the left ventricle pushes out as ejection to the aorta, the stroke volume that is. And in this way, the expression going on 0.75 सेकंड की एक साइकिल होती है. ठीक है ना, 0.75 या 0.8 सेकंड की एक साइकिल होती है ये. अब लगा लें आप
0.8 का मतलब 800 मिली सेकेंड है, ये एक साइकिल होती है कार्डिक साइकिल। इसमें सारा काम हो जाना चाहिए, ये अभी अभी आपको बताया, और ये बार बार दोहराना पड़ता है। जो आदमी जो है ना इसमें क्यों घबराता है कि वो ये यहाँ पे जो है ना घुसा हुआ होता है, वो इसको नहीं समझ रहा कि देयर आर 4 चैम्बर ऑफ द हार्ट, नॉट वन। सारे के सारे जितने भी फेल हुए हैं हमारे कैंडिडेट जो है एफसीपीएस में, इसी वजह से फेल हुए। वो फोकस करते रहे एक ही चीज को। अब एक चीज, इफ यू आर फोकसिंग ऑन वन चैम्बर, यू आर निग्लेक्टिंग द अदर चैम्बर। और ये डायनेमिक है, हार्ट इज ऑलवेज डायनेमिक। और डायनेमिक अगर चीज है और उसमें आप स्टडी कर रहे हैं किसी चीज को, ये साइकिल जो है ना आपको बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। एक बात तो ये, इसमें गलती की कोई गुंजाइश हुई तो आप गए। जैसे मैंने अभी आई सेड इन previously 5 minutes back, okay, there was a discrepancy between me and the examiner in the FCP examination, decided by the chief examiner afterwards that I was correct. The most acceptable is the physical examination. If you justify it on the physical examination, this is the problem. While echocardiography or ECG is on the opposite side, then he will take the physical examination on the top because I justified on the patient. You always remember this thing. उससे आप जान नहीं छुड़ा सकते। हमारे जितने फाइनल ईयर, ऑल फाइनल ईयर स्टूडेंट शुड नो हाउ टू डू द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एग्जामिनेशन। All which are who are attending the wards should know the physical examination of the precordium etc. on the correct path. जब ये आता है किसी को तब समझ में आता है, ऐसे नहीं आता। कंफ्यूजन ये होगा कि आप जो है ना फोकस कर रहे होते हैं यहाँ पे, स्टक हो जाते हैं यहाँ, अब इसको तो भूल जाते हैं आप। ये नहीं समझ रहे आप कि ये साइकिल चल रही है पूरी। अब यहाँ की तो फाइंडिंग इधर ही, यू आर फोकसिंग ऑन वन पार्ट ऑफ द हार्ट। हार्ट इज डायनेमिक, ये भूल गए आप। उससे जो है ना वो यू फेल इन दैट एग्जामिनेशन यूजुअली। ये आपको मालूम है, वैल्व मैंने बता दिया आपको कि 4 वैल्व में सेपरेट किया है, ये भी मैंने बता दिया आपको। और पैटर्न ऑफ फ्लो भी बता दिया है सर्कुलेशन का, ये भी मैंने बता दिया। ये सारी चीज़ें इन्होंने एनाटॉमी फिजियोलॉजी के साथ डिस्कस की हैं। डायनामिक्स को डिस्कस करने के बाद फिर हम इस नतीजे पे पहुंचे। What happened has this, starting from here now. The oxygenated blood comes via pulmonary veins into the left ventricle. So the mitral valve should open on this side to allow the blood flow. ओपन होना होगा डेफिनेटली, इसको ओपन होना होगा और एयोर्टिक वाल्व को बंद करना पड़ेगा और पल्मोनरी वाल्व को बंद करना पड़ेगा पैरेलल। जब ये ट्राइकस्पिड वाल्व यहाँ ओपन होगा, बाइकस्पिड वाल्व तो ट्राइकस्पिड वाल्व यहाँ ओपन होगा। ये पैरेलल है, ये आपस में, वो पैरेलल है आपस में। अब इस तरह से ये फ्लो अंदर जाएगा, जाने के बाद जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा तो मैट्रियल वाल्व क्लोज हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा और ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज हो जाएगा। अब क्या चीज ओपन हो जाएगी? एयोर्टिक वाल्व एंड पल्मोनरी वाल्व विल बी ओपन। अब ये जो फेज है लेफ्ट वेंट्रिकल का इजेक्शन फेज ये कहलाता है, स्ट्रोक वॉल्यूम जो एओर्टा में गया है, ये सिस्टोलिक फेज है। तो सिस्टोलिक फेज जो है ना उसके अंदर क्या होता है कि मैट्रियल वाल्व को बंद होना होता है और एओर्टिक वाल्व को खुलना होता है। ट्राइकस्पिड वाल्व को क्या करना पड़ता है? बंद करना पड़ता है और पल्मोनरी वाल्व को खोलना होगा। तो बंद होने की आवाज जो है, शटिंग साउंड जो है, इज मोर देन द ओपनिंग साउंड। फर्स्ट हार्ट साउंड जो है S1 जिसे कहते हैं, उसके कंपोनेंट जो हैं
वो मेटल का कंपोनेंट भी शामिल है, ट्रैकेस्पर का कंपोनेंट भी शामिल है, मगर इसका चूंकि प्रेशर बहुत कम होता है इसलिए ज्यादातर कंटेंट इसी का होता है. फर्स्ट हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस बाई 4 कंपोनेंट्स हैं. इसमें से जो ओपनिंग साउंड है उनको तो निग्लेक्ट करते हैं, लेकिन जो क्लोजर साउंड हैं ये दोनों ये बनाती हैं S1. ये पैरेलल होती हैं वेरी नियर टू द सिस्टोलिक फेज ऑफ द साइकिल. The first heart sound is produced by the closure of the metal valve and tricuspid. Similarly, second heart sound will be produced when there is a diastole in filling होगी, जब इसको बंद होना होगा. Closure of the aortic valve and the pulmonary valve closure S2. क्योंकि इनका प्रेशर इतना, इसमें भी प्रेशर जो होता है 110 होता है, इसका प्रेशर भी होता है वो 30 होता है, अच्छा खासा होता है. दोनों कंपोनेंट S2 के आपको मिल सकते हैं, जिसको A2 P2 कहते हैं. अगर गौर से सुने उसको तो आपको मिल जाएंगे. थोड़ा डिले होता है इनमें दोनों में, थोड़ा फर्क होता है. लेकिन S1 को जो है ना, ट्राइकस्पर कंपोनेंट बहुत जो होता है वो मास्क हो जाता है. तो सेकंड हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द क्लोजर ऑफ aortic valve and the pulmonary valve and opening of the metal valve and the tricuspid valve. ये चीज जो है ना अगर समझ में आती है तो फिर वो सारी चीजें आसान हो जाएंगी. S1 क्या होता है, S2 क्या होता है, ये बात अगर समझ में आ गई किसी, उसने जो है ना स्टेथोस्कोप रखा. देयर आर 4 एरियाज, मेटल एरिया, tricuspid एरिया, aortic एरिया एंड द पल्मोनरी एरिया. वहां पे ये साउंड को अप्रिशिएट करेगा, एक उंगली रखेगा कैरोटिड पल्स के ऊपर और स्टेथोस्कोप रखेगा, जो कोइंसाइड करेगी साउंड उसको पहली वाली वो S1 होगी, उसके साथ यानी उठेगा, आपकी उंगली ऊपर उठ जाती है कैरोटिड पल्सेशन पे, वो साउंड 1 होगी, जो आपके कान में सुनाई देगी वो साउंड 1 होगी. और उसके बाद जो साउंड आएगी, जो बहुत ही कम सेकंड के बाद आएगी, वो सेकंड साउंड होगी S2 होगी. S1 होगी फिर S2 होगी. ये वो साउंड है जो आप सुन रहे हैं, और हाथ रखा हुआ है आपने कैरोटिड पे टाइम रिलेशनशिप के लिए. ये चीज जो है ना, ये स्टूडेंट जो है ना क्या करते हैं कि जंप मारते हैं डायरेक्टली, रटा मारते हैं. हिमाचल स्टेनोसिस है, हिमाचल इरिटेशन है, VSD है, इसमें क्या फाइंडिंग है, रटा मार लो. इसी तरह AR के फाइंडिंग पे रटा मार लिया. और उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो बनाते हैं, वो भी बना लिए उन्होंने कि शॉर्टकट्स जो कहलाते हैं वो याद रखने के लिए, मेनोमिक्स. आप हैरान होंगे कि मेनोमिक्स जो है वो याद कर रही थी एक कैंडिडेट, FCPS का इम्तिहान भी दे रही है, मजेदार बात सुनिए. वो मेनोमिक जो है वो भूल गई. बट जैसे वो मेनोमिक भूली, टेबल बाबा होता था एक जमाने में, 90s के अंदर टेबल बाबा भी होता था. तो उसने पूछा व्हाट इज द प्रॉब्लम. उसने कहा सर मैं करेक्टली स्पीकिंग जो मैं कुछ बात कर रही हूँ मेनोमिक से मैं भूल गई हूँ. वो भाषा जो है ना, रावलपिंडी से आया था एग्जामिनर, और उसने आवाज मारी दूसरे को, बोला कि देखो ये क्या बोल रही है, बोले मेनोमिक भूल गई हूँ. ठीक है ना. बात ये है ना, जब तक कि आपको साउंड नहीं मालूम, यू डोंट नो व्हाट इज S1, व्हाट S2 क्या होती है, उसमें दौरान हो क्या रहा है, एक्टिविटी हार्ट में क्या हो रही है, जब तक आप नहीं समझ सकते, यू कांट. वो फिर रटा मारना पड़ जाएगा. यू हैव टू, कि नहीं, जो भी आपको करना है बाय हार्ट याद करना पड़ेगा, बहुत मुश्किल काम है. तो आई इस एज ग्रुप में जिसमें डिमेंटिक हो जाता है, 68 ईयर्स एज में, उसमें मैं जो हूँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती. क्यों? इसलिए कि मेरी बायोकेमिस्ट्री है, पैथोलॉजी है, फिजियोलॉजी है, एनाटॉमी जो है, और फार्माकोलॉजी वो स्ट्रांग है बहुत, अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत स्ट्रांग है. लिहाजा मुझे कोई परेशानी होती नहीं है. क्लिनिकल एग्जामिनेशन भी कर डाल, जब चाहे जिस वक्त चाहे उठाए, मैं बगैर तैयारी के तैयार हूँ.
बिल्कुल, आई एम रेडी टू गिव इट। लेकिन आपको इस तरह बनना होगा कि आपको पता होना चाहिए S1 क्या चीज़ है, S2 क्या है। इसलिए मैं बार बार दोहराया है इसको मैंने, लेकिन एक दफ़ा नहीं दोहराई, अपनी बात बार बार दोहराई। ये हार्ड साउंड्स की बात करती है इन्होंने, कहाँ कहाँ रखने एरिया में, ये भी मैंने बता दिया आपको, आपको पता ही है वो। नाउ कमिंग टू दी वेल्वुलर हार्ट डिजीजेस और कंसर्निंग ना, बेसिक जो इटियोलॉजी है इनकी, किसी भी हार्ट डिजीज की, वही इनकी भी इटियोलॉजी। सबसे इंपॉर्टेंट इनहेरिटेड हार्ट डिजीजेज हैं जो वेल्वुलर हार्ट डिजीज कॉज करती हैं। जी हाँ, कंजेनिटल हार्ट डिजीजेज हैं जो वेल्व को इन्वॉल्व करती हैं। यस, इसी तरीके से जो इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं जो कि हार्ट को इन्वॉल्व करती हैं और वेल्व को इन्वॉल्व करती हैं। यस, इन्फेक्शियस डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज हैं जो कि हार्ट को इन्वॉल्व करती हैं, वेल्व्स को भी इन्वॉल्व करती हैं। यस, लेकिन यही तरतीब जो है ना आपको रखनी पड़ेगी हर चीज डिजीज। अब किसी में डोमिनेंट डिजीज कोई और हो जाएगी, किसी में डोमिनेंट डिजीज कोई और। एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी होते हैं, और इसके अलावा जो है ना वो, जिसको आप स्टोरेज डिसऑर्डर कहते हैं, बच्चों की बात कर रहे हैं, उसमें भी जो है ना वैल्व इन्वॉल्व होता है। अगर करें आप तो 5-6 बन जाएंगी कोई। नेचुरल वेल्व डिजीज है ये। इट मीन दैट इसके अंदर वो डिस्कस कर रहा है मेटल वेल्व को इन द टू पार्ट्स, mitral stenosis एंड mitral regurgitation और mitral insufficiency। ये दो सेशन इसके होते हैं। फिर एओर्टिक वाल्व डिजीज डिस्कस करेगा, फिर वो एओर्टिक वाल्व स्टेनोसिस बताएगा आपको, और फिर एओर्टिक वाल्व रिगर्जिटेशन बताएगा। दो सेशन उसके होते हैं। तो ये होता है 4 सेशन। 4 सेशन में ये मुकम्मल होगा। अगर आपकी हिम्मत है तो आप अटेंड कर लीजिएगा, अगर हिम्मत हो तो ठीक है, हिम्मत ना हो, मैदान हार जाएंगे तो हार जाए, आपकी मर्जी है। ये याद रखिए, S1 क्यों प्रोड्यूस होता है, S2 क्यों प्रोड्यूस होता है, और उस दौरान हो क्या रहा है हार्ट में, बट इज एक्चुअली गोइंग ऑन इनसाइड द हार्ट। ब्लड का फ्लो याद रखिए, कहाँ से आ रहा है कहाँ जा रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए आप डिजीज पढ़ना शुरू करें। आप माइट्रल वेल्व डिजीज की जो स्टेनोसिस की जो है, ये नॉर्मल जो है ना उसका जो एरिया होता है माइट्रल स्टेनोसिस का, वो होता है 4 to 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब डिजीज प्रोसेस इन द वर्ल्ड जो है, सबसे कॉमनेस्ट डिजीज जो मेटल वेल्व को इन्वॉल्व करती है वो एक्वायर्ड है, इत्तेफाक की बात है। कंजेनिटल मेटल स्टेनोसिस बहुत कम होता है। एक्वायर्ड डिजीज में सबसे कॉमनेस्ट डिजीज जो है इन्फेक्शियस है, और इन्फेक्शियस में कॉमनेस्ट डिजीज ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है, और जिनमें से रोमेटिक हार्ट डिजीज जैसे कहते हैं हम, सबसे कॉमनेस्ट है जो मेटल स्टेनोसिस को कॉज करता है, फॉलोड बाय अदर जो मैंने आपको सारे बता दिए थे, मेरी फैमिली है, इनहेरिटेड, मेटाबॉलिक, फला फला। बट द कॉमनेस्ट वन इज दिस। ना डिजीज एक्चुअली करती है इन्वॉल्व ऑफ द मेटल, मेटल वेल्व की जो एनाटॉमी है वो आनी चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय कमिश्चर, व्हाट डू यू मीन बाय लीफलेट्स, लीफलेट्स इसके कौन से होते हैं, ये सारी टर्मिनोलॉजी। कमिश्चर क्या होते हैं, एनुलस क्या होता है, फिर पैपिकुलर मसल्स अटैच होते हैं इसके साथ, वो जो होते हैं वो कहाँ से निकलते हैं, उनकी सप्लाई क्या है, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। या हम ये समझ रहे हैं कि आपको आता है, ये सारी चीज़ें कंसीडर करें इस बात। फीमेल मेल रेशियो ज़्यादातर, इत्तेफाक की बात है, फीमेल्स आर मोर इन्वॉल्व इन होल वर्ल्ड। इट इज अबाउट 2/3 ऑफ द फीमेल्स आर इन्वॉल्व। लेकिन मैटल रिगर्जिटेशन में जो मेल्स जो होते हैं ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं। उसकी वजूहत हैं अपनी अपनी जगहों पर। प्योर MR और प्योर MS आप जैसे कहते हैं, इसको आप कहते हैं डोमिनेंट MR या डोमिनेंट MS। हमेशा ये लफ्ज़ इस्तेमाल करें, पोलर एंड डोमिनेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल करें। प्री डोमिनेंट है मेटेरियल की बात कर रहे हैं आप, या प्री डोमिनेंट MR की बात कर रहे हैं, या आप कंबाइंड वाल्वुलर की बात कर रहे हैं, आपको नहीं पता है। दोनों के फीचर मौजूद हैं, डिसाइड करना मुश्किल है। यानी मेटेरियल भी हो गया, साथ में इंसफिशियंसी भी हो गई।
तो स्क्वायर 4 to 6 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है। अब ये होता ही है कि किसी भी वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से, डिस्ट्रक्शन की वजह से एरिया कम हो जाता है। इस तरीके से वो क्या होता है कि फाइब्रोटिक हो जाता है एरिया, और एरिया गिर के 2 सेंटीमीटर तक हो जाता है। मैं पहली मरतबा जो है ना पेशेंट महसूस करता है इस वक्त कि मुझे कुछ हो रहा है, यानी वो जब तेज चलता है, ब्रिस्क वॉक करता है, नया क्लास 2 ब्रिस्क वॉक करता है, तो फिर जाके पता चलता है उसे कि हाँ भाई पहले तो नहीं था, यंग आदमी है, अब क्यों ये हो रहा है, सांस हो रही है, मैं तो मेरी ब्रिस्क वॉक नहीं कर सकता। अब 2 से भी कम करें इसको, 1.5 सेंटीमीटर अगर हो गया या तो फिर फुल फ्लैश माइट्रल स्टेनोसिस हो जाए। 1.5 के ऊपर जो है पूरे सिम्टोमेटोलॉजी जो है माइट्रल स्टेनोसिस वो सारी की सारी जो है ना वो आ जाएगी आपके सामने। यानी वही बंदा जो है ना पहले ये कह रहा था कि मैं चल सकता हूँ ब्रिस्क वॉक, अब वो ये कहता है कि जी मैं चल नहीं सकता हूँ, मैं थोड़ा सा चलता हूँ, मैं अपना काम ही नहीं कर सकता। और कम करें एरिया को, 1.5 से भी नीचे लेके आएंगे, 1 सेंटीमीटर और लेस, तो 0.5 मिली अब लिखाएं आप जरा इसकी, सेंटीमीटर टू 1 सेंटीमीटर इज कॉल्ड सिवियर माइट्रल स्टेनोसिस। अब इसके अंदर ये नया क्लास 4 में चला जाएगा, यानी एट दी रेस्टिंग फेज में भी उसको ब्रेथलेसनेस हो जाएगी, और इसके अलावा लाइन पोजीशन में ऑर्थोपनिया हो जाएगा, नॉक्टर्नल डिस्निया हो जाएगा, और सारे सिम्टम आ जाएंगे। ब्लड प्रेशर, इस तरीके से इसको जो है ना यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली। इट इज द सिम्टोमेटोलॉजी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द माइट्रल वेल्व। जितना बड़ा एरिया होगा उसका अच्छा एरिया होगा, 4 to 6 सेंटीमीटर पेशेंट जो है वो सिम्टमलेस होगा। जितना कम आप करेंगे अब इधर से आइए, उतना जो है ना वो सिम्टोमेटिक होता चला जाएगा। 6 सेंटीमीटर से भी अगर ज्यादा बढ़ा देंगे तो फिर इंसफिशियंसी हो जाएगी, सेम सिम्टम विल अपीयर नाउ। एग्जैक्टली 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर का हो गया है, वो चौड़ा हो गया है, वो इंसफिशियंट वाल्व हो जाएगा, और उसमें वही सिम्टम होंगे जो अभी अभी बताएंगे, एग्जैक्टली बराबर हो जाएंगे। सिम्टम का ज्यादा ताल्लुक है, आई थिंक दिस फटीगेबिलिटी और ब्रेथलेसनेस एक्चुअली इज द प्रॉब्लम। हार्ट डिजीज के अंदर इंपॉर्टेंट चीज जो हमेशा ब्रेथलेसनेस होती है, याद रखिए, पेन की इंपॉर्टेंट नहीं होती, इसमें ब्रेथलेसनेस की इंपॉर्टेंस होती है। सो यहाँ पे जो है ना वो इसको आसान बनाने के लिए बहुत दयालु से जाहिर बात है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी अभी अगर आप समझें, ये छोड़ें इसको, इसको समझें। देखिए ना आपने क्या किया है कि माइट्रल वेल्व की जो है ना ये एरिया उसको कम कर रहे हैं। जब ये एरिया को कम करेंगे तो यहाँ एटिया का प्रेशर बढ़ जाएगा, एटिया प्रेशर बढ़ जाएगा, वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, ये बैक प्रेशर देगा ऑन द वेन्स, पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स जो है वो जाती है राइट लंग लेफ्ट लंग में, वहाँ पल्मोनरी वीनस हाइपरटेंशन हो जाएगा, वो रिवर्ट बैक होगा राइट साइड ऑफ द हार्ट, वो प्रेशर ट्रांसमिट करेगा पल्मोनरी आर्टरी को, पल्मोनरी आर्टरी हो जाती है डायलेट, उसके बाद और प्रेशर दे देती है सारा राइट वेंट्रिकल को। राइट वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ेगा तो फिर राइट एट्रियल का भी प्रेशर बढ़ेगा। फिर इस तरीके से जो पूरा का पूरा साइकिल है वो आपने बर्बाद कर दिया। तो जहां पे एंड सिस्टोलिक, यानी ऊपर से जो वॉल्यूम आ रहा है वो, इसमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, जब खुला तो यहाँ वॉल्यूम हो गया कम। अब ये वो फेज है जो सिस्टोलिक फेज है, इसमें एओर्टिक वाल्व खुला हुआ है, ठीक है जी। अब यहाँ पे ब्लड ही इनसफिशियंट है, ब्लड इनसफिशियंट है तो एओर्टा के अंदर भी ब्लड इज नॉट सफिशियंट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन,
इसलिए पेशेंट क्या होगा, इजी फटीगेबिलिटी में प्रोड्यूस हो जाएगी। उधर का पर्मनेंट हाइपरटेंशन से डिस्निया हो जाएगा, इधर से जो फटीगेबिलिटी हो जाएगी, उसको थोड़ी देर के बाद में थक जाएगा, काम नहीं कर सकता। इसको आप जो है ना इस तरह समझें बात को, तो बहुत आसान हो जाएगी। मोर इज द डायमीटर of the mitral valve, more are the symptoms. जैसे बढ़ाते चले जाएंगे सीवियर होता चले जाएगा। सो मच सो जो लेफ्ट एट्रियम जो है वो इतना इंलार्ज हो जाएगा, वो रोल बैक होगा, ये पीछे चला जाता है, यहाँ पे आ जाता है, यानी राइट बॉर्डर ऑफ द हार्ट के पीछे होता है। इतना ज्यादा होता है, इतना बड़ा, जितना वेंट्रिकल का साइज है उससे भी ज्यादा हो जाता है। मैं तो ये कह रहा हूँ, साइज वाइज बड़ा हो जाता है, उसका प्रेशर इतना होता है, यार फट जाए वो, क्या होता है, कंपनसेशन होता है, वो डायलेट होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए जो है ना ये चीज को ध्यान में रखना है आपने अपनी गुफ्तगू के दौरान, जो मैंने अभी अभी आपको बता दी। उस तरफ जाएंगे तो ये होगा, इस तरफ आएंगे तो ये होगा, ये दोनों चीजें आपको बता दी। अरे ज्यादातर रोमेटिक रीजन के हैं, वो बात हो गई थी। और ये सिम्टोमेटोलॉजी, कॉमन सिम्टोमेटोलॉजी इसकी जो है वो नया क्लासेस की है, यानी ब्रेथलेसनेस की, वो और कॉमन जो फटीगेबिलिटी की है। अगर हाईएस्ट प्रेशर आप जनरेट कर दें, पल्मोनरी वेन्स अगर वो रप्चर हो जाएं, ओकेजनल हेमोप्टेसिस होता है इन ओनली 5 to 10% ऑफ केसेस। मैंने कभी किसी को नहीं हेमोप्टेसिस देखा है अभी तक, मिट्रल स्टेनोसिस का मैंने नहीं देखा, क्योंकि स्टेसिस बहुत ज्यादा है। कहाँ पे, यहाँ पे जहाँ पे एटिया इतना लार्ज किया हुआ है आपने, तो जाहिर है जब एटिया की इन्लार्जमेंट भी ज्यादा होगी तो वहाँ स्टेसिस भी बहुत होगा, स्टेसिस ज्यादा होगा तो मीरोथ्रोम्बोसिस होगा, मीरोथ्रोम्बोसिस होगा तो ब्रेक होगा, और अगर ब्रेक हो गया तो क्या होगा, सिस्टेमिक एम्बोलिज्म हो जाएगा। खासतौर पर एटियल फिब्रिलेशन के साथ होगा ये। फ्लूटर जो है बचा लेगा फिर भी, लेकिन अगर हम फिब्रिलेट कर गया वो, तो उसे हो जाना चाहिए फिब्रिलेट, इतनी इन्लार्जमेंट में उसको फिब्रिलेट करना चाहिए था। वो फिब्रिलेट करेगा तो वो स्टेसिस होगा, स्टेसिस होगा तो पूरा आप साइकिल दोहरा रहे हैं आप पीछे। सबसे ज्यादा मुश्किल काम है वो ये जो है ना, इसको जो है ना आप फिजिकल एग्जामिनेशन है, ऑलवेज डन द प्रीकॉर्डियम एग्जामिनेशन। इंस्पेक्शन कुछ नजर आए तो बता दीजिए कि भाई मार्टल एरिया में या टार्कसवेल एरिया में या कहीं पे भी आपको कोई पल्सेशन नजर आती है, यू सीन एनी पल्सेशन, डू इट, बता दें। बल्जिंग आपको नजर आती है तो बताएं आपकी बल्जिंग नजर आ रही है। ये आप ज़्यादा टिपिकली ये प्रीकॉर्डियल की आप इंस्पेक्शन कर रहे हैं, प्रीकॉर्डियल की, इसमें जो है ना आप परकशन नहीं करते, ऑब्सोलीट है, सिवाय चंद एरियाज में करनी पड़ती है जहाँ पे फैसिलिटीज नहीं होती हैं, सिर्फ फिजिकल एग्जामिनेशन में डिपेंड कर रहे होते हैं, वहाँ पे आपको फिर मजबूरन जो है ना पक्कस भी करना पड़ता है। वो छोड़े, वो आपके लिए नहीं है। पल्पेशन जो है ना इसके अंदर जो फाइन इंपॉर्टेंट चीज़ है देखने वाली, वो ये है पल्पेशन के अंदर कि आप जो है ना वो 3 या 4 पॉइंट को लाजमी तौर पे चेक करें। एक तो एपेक्स बीट की लोकेशन देखिए, फिर एपेक्स बीट शुड बी डिस्क्राइब नाउ। उसके बाद जो है ना फिर दूसरे एरिया में आए, ट्राइकस्पर में आए, उसको आप पैल्पेट करें। इस तरह से आप उसमें थ्रिल के लिए जाएं, हीविंग ऑफ दी वेंट्रिकल्स के लिए जाएं, कि प्रेशर जो माउंट होकर वापस आया है वो तो राइट वेंट्रिकल पे आ गया, हीविंग ऑफ द राइट वेंट्रिकल इसलिए कहते हैं, वो चेक करें। या आपको जो पैल्पेबल मामा मिल रहे हैं, पैल्पेबल मामा का मतलब ये होता है बहुत बड़ी बात, पैल्पेबल मामा इज नथिंग बट थ्रिल, तो वो भी आप डिस्क्राइब करें ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन। ये वो एग्जामिनेशन है जो पैल्पेशन पे करते हैं। इन मिट्रल स्टेनोसिस क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड इज कमिंग वेरी लेस, और उसका स्ट्रोक वॉल्यूम भी लो हो गया है। ये नॉर्मली होता है फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में होता है 7.5 सेंटीमीटर
फ्रॉम द मिड स्टेनल लाइन। अब ये जो होगा ये क्या करेगा, शिफ्ट करेगा, बजाय इसके कि वो अपनी जगह को डिस्प्लेस करे 7.5 से आगे 8 सेंटीमीटर हो, ये इधर आ जाएगा, 7.5 की जगह 7 हो जाएगा, या 7.5 रहेगा 7 हो जाएगा, क्योंकि ये स्मॉल हो गया, ये वेंट्रिकल का साइज कम हो गया, इसमें ब्लड वॉल्यूम ही नहीं है। इसमें एपेक्स भी जो लोकेट होती है इसकी, वो बड़ी टिपिकली जगह है, या तो नॉर्मल स्पेस में हो जाती है, या टुवर्ड्स दी 6 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिड एक्सटर्नल लाइन। मैंने पैल्पेट किए 5.5 पर भी पैल्पेट किए, छोटा हो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल, बड़ा नहीं होता, छोटा हो जाता है बिकॉज ऑफ द लेस ऑफ द ब्लड वॉल्यूम। उसके बाद जब आप महसूस करते हैं, जब उंगली रखते हैं वहाँ पे एट द एपेक्स बीट पे, कैरेक्टर देखने के लिए, रेट आप बता दें कितना है और कैरेक्टर आप बताएं उसका, तो आपको ऐसा लगेगा कोई चीज़ आपसे टकराती है, यानी कोई चीज़ टकराती है और फिर चली जाती है, टकराती है और चली जाती है। जैसे दरवाजे पे आप नॉक करते हैं, टैप करते हैं, इसको कहते हैं टैपिंग एपेक्स बीट। Tapping apex beat occurs because of the accentuated first heart sound। वो इतनी तेज होती है कि वो ट्रांसमिट हो जाती है एपेक्स बीट के अंदर, इतनी तेज साउंड होती है वो। S1 किससे प्रोड्यूस होता था? क्लोजर ऑफ द माइट्रल वेल and closure of the tricuspid valve on this side, but opening of the aortic valve and opening of the pulmonary valve, इससे हो रहा था ना S1। अब यहाँ पे तो जगह ही बहुत छोड़ी है, वो क्या है कि गुस्से में आके वो जो बंद होता है, शक करता है, तो उसकी साउंड बहुत ज़्यादा होती है। आप करीब से आप दरवाज़ा ज़रा भेड़े, ज़रा धक्का मार के, ज़रा बहुत ज़्यादा साउंड होगी, और फिर हल्के से आप टच करके बंद करते हैं, साउंड कम हो जाएगी। आप करके देखें, अपने घर के अंदर दरवाज़ा बंद करके देखें आप, फिर आपकी समझ में आ जाएगी बात। स्पेस है स्मॉल, इसको शट करना है, उसने ताकत पूरी मौजूद है, पूरे दम के साथ शट होगा। दैट इज वाई इसको, ये जो अपेक्स बीट है, इट इज कॉल्ड टैपिंग एपेक्स, एंड टैपिंग एपेक्स बीट इज नथिंग बट दी, इट इज पैल्पेबल हाई इंटेंसिटी S1। ये बोला आपने और आपने मार का मार दिया, लेकिन एग्जामिनर जो है ना खुश हो जाता है, उसको पता है कि यार इसने केस समझता है ये बंदा, ये क्या है। अब आप जो है ना चाहे तो थ्रिल नहीं चलना चाहते हैं, आप थ्रिल को देख लीजिए, क्योंकि सारा का फेज जो है ना वो डायस्टोलिक का फेज है। उसके बाद जिसमें ब्लड आ रहा है नीचे, उसमें डायस्टोलिक जो है ना वो थ्रिल मिलेगी, अगर मिल गई, और वो जो है ना वो रेडिएट होगी टुवर्ड एक्सिला, अगर मिल गई तो। जब थ्रिल किसी को मिल जाती है तो इसका मतलब होता है कि उसकी जो है वो इंटेंसिटी जो है उसकी मामा की, जो मामा जिसका डिस्क्राइब होगा, तो उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। थ्रिल जब आ जाए, कभी भी याद रखें, स्टॉलिक थ्रिल है तो 3+ होगी, और डायस्टोलिक है तो 2+ हो, ऑलवेज। डायस्टोलिक है चूंकि 2+, इसका मतलब है कि ये इसके अंदर जो है ना, इसकी ग्रेडिंग अगर आप करेंगे, मामा की ग्रेडिंग करेंगे, तो उसमें 2+ आएगा डायस्टोलिक मामा। उमन डायस्टोलिक मामस जो होते हैं रेडिएट नहीं करते, ये खाली ये कहीं कहीं आपको मिलेगा, ये डायस्टोलिक मामस जो है इसमें थ्रिल भी हो और रेडिएट भी कर रहा है। माइट्रल स्टेनोसिस इज वन ऑफ द ओकेजनल डिजीज जिसके अंदर ये होता है। हीविंग ऑफ द राइट वेंट्रिकल इसमें मिलेगी, आपको बिल्कुल मिलनी चाहिए। बैक प्रेशर बहुत ज्यादा है, राइट वेंट्रिकल इंलार्ज हो जाएगा, ज़्यादा हीविंग ऑफ द राइट वेंट्रिकल इज ऑल्सो देयर, वो भी आपको जो है ना पैल्पेशन में ही मिलेगी ना। फिर आप ऑस्कल्टेशन करते हैं, ऑस्कल्टेशन जब करते हैं तो आप जो है ना अपना स्टेथोस्कोप को रखते हैं कहाँ, एपेक्स बीट के ऊपर, और एक हाथ रखें आप कैरोटिड पल्स पे। अब आप क्या करेंगे, साउंड को गौर से सुने, कान में सुननी है इसको। S1 ऐसा लगेगा जैसे हथौड़ा मार रहा है कोई, फिर उसके बाद गैप आएगा, और उसके बाद S2 आएगा। S1 इज प्रोड्यूस्ड बाय द क्लोजर ऑफ द एओर्टिक एंड पल्मोनरी वेल्व, वो तो नॉर्मल आपको मालूम है। S1 इज प्रोड्यूस्ड बाय द क्लोजर ऑफ द मैट्रल वेल्व
एंड द ट्राइकस्पिड वेल्व्स। बल S2 जो है ना जो प्रोड्यूस होगा वो डायस्टोलिक फेज में होगा। अब झगड़ा सारा जो है ना वो डायस्टोलिक का है। यहाँ डायस्टोलिक है, हाई प्रेशर एरिया से ब्लड को नीचे आपको लेके आना है। इसमें S1 होगा लाउड, S2 को क्या करेगा, सप्रेस करेगा। वो S2 को सप्रेस करेगा, उसकी जगह आपको ओपनिंग स्नैप मिल सकता है, स्नैपिंग साउंड जिसे कहते हैं, फॉलोड बाय डायस्टोलिक रम्बलिंग मरमर मिलेगा। और ये होता है अर्ली होता है ज्यादातर, लेकिन मिड डायस्टोलिक भी होता है इसमें, जो लिखा गया बुक में, थोड़ा वक्फा देता है, टाइम देता है। स्नैप, ओपनिंग स्नैप and diastolic murmur, rumbling in nature. And then again S1 occurs, फिर S2, फिर वो दोबारा opening snap, followed by the diastolic murmur, rumbling murmur. ये साइकिल चलती रहेगी चलती रहेगी। जितना ओपनिंग स्नैप जब तक मौजूद है, जब तक इसका मतलब है कि मेटल वेल में जिंदगी मौजूद है, ये याद रखिए। ओपनिंग स्नैप मीन्स है कि अभी मेटल वेल के साथ बहुत कुछ किया जा सकता है, इसको मैनेज करना आसान होगा। लेकिन ओपनिंग स्नैप नहीं है किसी को, और डायस्टोलिक रम्बलर मरमर मिल रहा है आपको, वो उसकी इंटेंसिटी भी बहुत ज्यादा है। मोर इज द ड्यूरेशन ऑफ द डायस्टोलिक मरमर, मोर इंटेंसिटी इज द डायस्टोलिक मरमर की जितनी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, जितना रम्बलेशन ज्यादा होगा उसका, उतनी वर्स होगा मेटल स्ट्रेस। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, while it is inversely proportional to the opening snap। वो अच्छा साइन है, ये बुरा साइन है बहुत। ये प्राइमरीली जो है वो मेटल एरिया में आपको ये फाइंडिंग मिलेगी। बाकी जितनी भी आप एरिया चेक करेंगे वो सेकेंडरी इफेक्ट्स की हैं। चेक द ट्राइकस्पिड एरिया नाउ, बिकॉज ऑफ द बैक प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरी, या द ट्राइकस्पिड के अंदर जो है ना वो वैल्व जो है इनसफिशिएंट हो जाएगा, सारा प्रेशर ट्रांसमिट करेगा राइट एट्रियम को, एंड दैट इज व्हाई a pansystolic murmur occurs, which is called functional TR, in the tricuspid area, और इसको कहते हैं कार्वेलोस साइन, और कार्वेलो मर्मर भी कहते हैं, कार्वेलो साइन भी कहते हैं। फंक्शनल TR या और कंडीशन में भी होता है। ये होगी फाइंडिंग हो गई इसे, इसके अंदर हो गई। अब एओर्टिक वेल्व के अंदर जाएंगे, एओर्टिक एरिया में तो आपको जो है ना एओर्टिक एरिया है उसमें S1 S2 दोनों साउंड्स मिलेंगे, मगर प्रॉब्लम ये आ रही होगी आपको, S2 जो है ना वो उसका एओर्टिक कंपोनेंट अलग है और पल्मोनरी कंपोनेंट अलग है। अब देखिए सारा का सारा लोड तो आपने पल्मोनरी को दे दिया, तो लिहाजा पल्मोनरी का जो कंपोनेंट है वो बहुत ज्यादा यानी वो शार्प होगा इसके अंदर। जो आप पल्मोनरी एरिया को आप ऑस्कल्टेट करेंगे तो उसके अंदर S2 जो है ना उसमें वाज़ेह तौर पे जो है ना आपको मिलेगा, ये S2 के अंदर जो है पल्मोनरी कंपोनेंट इज मोर देन द एओर्टिक कंपोनेंट, इसलिए कि इनके अंदर दोनों के दरमियान थोड़ा फर्क होता है, स्प्लिट होता है ये, तो इसमें आपको स्प्लिट मिलेगी S2 की, जो कि स्मॉल स्प्लिट होगी लेकिन स्प्लिट मिलेगी। और आपको पल्मोनरी एरिया में बिकॉज पल्मोनरी रिगर्गिटेशन होगा इसके साथ सेकेंडरी, इसको कहते हैं ग्राम स्टील मर्मर, ये भी फंक्शनल होता है और ये पल्मोनरी एरिया में होता है। ये है प्रीकॉर्डियल फाइंडिंग। अब ये जो चीज जो है ना ये ट्रांसमिट होगी, अगर एट्रियल फिब्रिलेशन है और जेवीपी कोई देख रहा है, ए का कंपोनेंट ज़ाया हो जाता है, इसमें ए वेव नहीं मिलती, सी और बी वेव रह जाती है। जैसे आपको थ्योरेटिकल बता रहा हूँ, एक बात बता रहा हूँ, वहाँ आपको मिल जाती है। इसका पेरिफेरल जब पल्स पे आते हैं तो वहाँ पे जो है ना वॉल्यूम कम है तो क्या होना चाहिए, इस तरह मतलब पल्स इसकी जो होगी जितना अच्छे प्रेशर पे आनी चाहिए, वॉल्यूम पे आनी चाहिए, नहीं आएगी। और पल्स प्रेशर भी जो है
वो इतना अच्छा नहीं होगा। जो होना चाहिए नॉर्मल पल्स प्रेशर होना चाहिए, वो भी नहीं होगा, क्योंकि आपने स्ट्रोक वॉल्यूम को कम कर दिया। ये वो फाइंडिंग है जो फिजिकल फाइंडिंग्स कहलाती है मैटल स्टेनोसिस की, जिसमें अक्सर जो है ना झगड़ा झगड़ा जो है लोगों में रहता है। अगर ये फिजिकल एग्जामिनेशन आता है उनको, ये उन्होंने जो है ना बहुत जबरदस्त तस्वीर कशी की है। एयोर्टिक एंड पल्मोनरी कंपोनेंट देखिए आप, सेकंड अल्ट्रासाउंड की बात करें, एस वन तो है वो हो गया कि जी हो गया, एस वन एक्सेंचुएट हो गया। यहाँ पे आप देखें पी टू कॉम्पोनेंट इसका बहुत ज़्यादा है, ए टू कॉम्पोनेंट कम है। फिर ये मिड स्टॉलिक या अर्ली डायस्टोलिक, तो मिड डायस्टोलिक मर्मर है। जितना मर्मर ज़्यादा लंबा होगा उतना सीवियर होगा, जितनी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी उतनी सीवियर होगी, जितना रमलेशन ज़्यादा होगा उतना होगा, जितना इसका रेडिएशन ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वर्ष होगा। एक ओपनिंग स्नैप अगर आएगा यहाँ पे आएगा, वो मौजूद है, तो इसका मतलब है कि अभी मेटल वाल्व के अंदर जान है, आप अभी बहुत कुछ कर सकते हैं। ओपनिंग स्नैप इज अ गुड साइन as far as prognostic sign clinical is concerned in cases of the mitral stenosis। ये बात जो है ना इसको बहुत आसानी के साथ समझी जा सकती है। जाहिर है इसमें मैंने पहले भी आपको चैलेंज किया था कि भाई फिजिकल एनालिसिस में टॉप पे उसी की बुनियाद के ऊपर जो है ना डायग्नोसिस बनाई जाएगी। चेस्ट रेडियोलॉजी करें, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी करें, एको करें, कैथेटराइजेशन करें, आप सब कुछ कर दीजिए, उसमें फाइंडिंग भी आ जाएंगी। जाहिर बात है एक्सरे फाइंडिंग भी आ जाएंगी, जो कि आपको जब बताई जाएंगी, जब रेडियोलॉजी बताई जाएगी तब बताई जाएगी। इसके मार्टल स्टेनोसिस जब होता है और ग्रेजुअली बर्थ होता है, तो एक्सरे चेस्ट की फाइंडिंग जो होती है वो इसमें होती है कितनी, सात सात फाइंडिंग होती हैं, 6 या 7 फाइंडिंग होती हैं जो कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन से रिलेटेड होती है। लिहाजा वो आपको जब एक्सरे बताया जाएगा उसमें वो एक्सरे दिखाए जाएंगे, मेरे पास मौजूद हैं, फिजिकली मौजूद। तो काली लाइन्स जो है ना लेस्ट हैं, बी लाइन्स, ए लाइन भी होती है, सी लाइन भी होती है, आपको इससे फर्क नहीं पड़ता। हार्ट का साइज जो है ना वो नॉर्मल होता है, ये बात है। लेकिन जो राइट बॉर्डर है हार्ट का साइज जो है वो नॉर्मल होना चाहिए एक्सरे के अंदर। अगर हार्ट का साइज लार्ज है तो इसका मतलब है कि एमआर डेवलप हो गया, उसको भी कॉम्पोनेंट शामिल हो गया, या एस3 आपको मिल जाए थर्ड हार्ट साउंड, वो भी ये इंडिकेट करेगी कि इसके अंदर जो है ना कंटेंट भी इंसफिशिएंसी का कंटेंट भी शामिल हो गया। एंड देन इसके अंदर जो है ना इसके मुख्तलिफ एक्सरे हैं जो दिखाए गए हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये याद रखिए, ये पार्ट जो है ना ये है लेफ्ट एट्रियम अपेंडिज, ये प्रोमिनेंट हो गया, ये पल्मोनरी कोनस है, ये काफ़ी अच्छा प्रोमिनेंट है। फिर आपको यहाँ पे हेजीनेस नज़र आ रही होगी, पार्ट ऑफ इट। ये जो है ना इसके बड़े इंपॉर्टेंट एक्सरे हैं विच आर गोइंग ऑन। और फिर उसके बाद ये आगे जाएगा, फिर आगे जाएगा, इसके बहुत सारे डबल बॉर्डर हो जाएगा, लेफ्ट बॉर्डर है, राइट बॉर्डर अलग हो जाएगा। The doubling of the right border of the heart on radiology is the diagnostic of the severe mitral stenosis or severe mitral stenosis with a component of mitral regurgitation। इसके लिए बहुत सारे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में आप देखेंगे तो आपको क्या मिलना चाहिए, इसके अंदर दायरा आपको पहले बता दिया था कि पी मेट्रेली मिलना चाहिए। देखें यहाँ पे 1 में देखें आप, ये जो है ना ये डिफिड है ये, और इसका ड्यूरेशन जो है वो जो मैंने बताया था आपको कम से कम 0.12 होता है, उससे ज़्यादा है। ये यहाँ से नापें इसको यहाँ तक, ये ज़्यादा है, ये 4 है। यहाँ से देखिए ना काफ़ी वाज़ेह है, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक, तो ये है पी मिट्रेली। लेकिन इसके साथ बहुत सारे और भी देर आर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ फाइंडिंग्स आर देयर। ये जो है ना एकोकार्डियोग्राफ इसको वो कर देगा, एंडोर्स कर देगा, ठीक है, दैट्स ऑल राइट। हमें हमें उसके बहस नहीं है, वो कर दे, ठीक है, ऑल राइट। डिफरेंशियल डायग्नोसिस इसको करते हैं एट्रियल मिक्सोमा से और ट्राई एट्रियम से और कंजेनिटल मार्टल स्टेनोसिस के साथ। इसके अलावा और डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी हैं, जिसके अंदर जो है ना वो ऑस्टिन फ्लिंट मर्मर जिसमें होता है, वो एओर्टिक रिगर्जिटेशन का एक मर्मर होता है जो ऑस्टिन फ्लिंट मर्मर कहलाता है, वो आपको सुनाई देता है एपेक्स ऑफ द हार्ट, सेकेंडरी मर्मर होता है। उसके अंदर क्या होता है कि
इंटेंसिटी ऑफ द फर्स्ट हार्ट साउंड नहीं होती, ज़्यादा नहीं होती, इसलिए डिफ्रेंशिएट हो जाता है वो ऑस्टिन फ्लिंट मामला। इसके लिए मेडिकल में आपको जाना है तो वही जो आपकी थेरेपी है वो देनी है आपने। प्री लोड को कम करने के एजेंट दे दीजिए, हार्ट के ऊपर जो है लोड कम करने के एजेंट देते हैं, आफ्टर लोड एजेंट दे दें कम करने के, एंटीकोगुलेशन दे दें इसको, और फिर आगे चलें जो मैकेनिकल रिलीफ करने के लिए जो है ना वो कैथेटर बेस्ड सर्जरीज हैं, बैलून मार्टल की मेजोरॉटमी है मिसाल के तौर पे, और इसी तरह बैलून जो है वो वेल्वुलोप्लास्टी है, कैथेटर बेस्ड सर्जरीज है, और ओपन हार्ट सर्जरी भी करते हैं इसके अंदर, क्लोज सर्जिकल मेजोरॉटमी और ओपन सर्जिकल मेजोरॉटमी वगैरह करते हैं ये। अभी जो है ना अगर सीवियर था और आपने वैल्व देखा कि कैल्सिफाई हो गया, बिल्कुल बर्बाद हो गया, यू गो फॉर मार्टल वेल्व रिप्लेसमेंट। मार्टल वेल्व रिप्लेसमेंट यंग एज में जो है वो मैकेनिकल वेल्व विल बी रिप्लेस। अगर ओल्ड एज में ये पेशेंट आया था तो बायोप्रोस्थेटिक वेल्व लगाना होगा। अगर मैकेनिकल वेल्व यू आर यूजिंग तो लाइफ लॉन्ग आपको वार्फरिन सोडियम देनी होगी, और इसका आईएनआर आपको रखना होता है 2.5 to 3। ये वो लेक्चर है जो 2 घंटे 2.5 घंटे का लेक्चर को मैंने यहाँ पर इसको एंड किया है, बिकॉज ये कि वो मुझे यहाँ से मैसेज मिल रहा है कि इसको आप रोक दें, द एंड ऑफ द सेशन 1। सो आई एम closing it now, and after 5 minutes I will go through for the second session। अगर जो आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप फिर आप देख लीजिएगा इसको, अदरवाइज